آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 20 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کالا علم سیکھنے والے کو شیطانی احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور ان احکامات میں سب سے نمایاں حکم یہی ہے کہ وہ جنس و ہوس کا غلام بن کر زندگی گزارے گا۔ اس کی نظر میں خونی اور انسانی رشتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی مقام پر ان احکامات سے روگردانی کرے تو اس کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں کفِ افسوس مل رہا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، مگر وہ شیطانی احکامات پر عمل کر کے غلیظ ترین جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ کالا علم کرنے والوں کی بھی یہی زندگی ہوتی ہے۔ ٹہلی والی سرکار نے میرے چہرے کے تغیر و تبدل کو دیکھا تو بولے، تو ٹھیک سوچ رہا ہے، ہم انسانوں کی بستیوں میں جانوروں جیسے کام ہی کرتے ہیں۔ میں تو جدھر دیکھتا ہوں مجھے انسان کم ہی نظر آتے ہیں، اور چاروں طرف خونی بھیڑیے، کتے، بندر، لومڑ، گیدڑ اور سور ہی نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں انسانوں جیسی ہیں، مگر چہرے جانوروں جیسے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ان کا کوئی فعل انسانوں جیسا نہیں ہے، اور پھر ان کافروں کو تو ویسے ہی اللہ کی مار ہے۔ یہ اپنے بھگوان کو پوچھتے ہیں، ان کے بھگوان اوتار تو شیطان کے تراشے ہوئے خدا ہیں۔ ظاہر ہے یہ شیطان کو پوجیں گے تو گندے کام ہی کریں گے، مگر دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جب کسی مسلمان کو کافروں سے بدتر دیکھتا ہوں۔ اللہ نے مسلمانوں کو کتنی محبوب امت بنایا ہے، لیکن یہ مسلمان اللہ سے طلب کرنے کی بجائے ان شیطانوں کے در پر جا کر غلامی اختیار کرتے ہیں۔ کوئی جنات سے مانگتا ہے اور کوئی شیطان سے، کوئی درویشوں کے در پر آتا ہے تو کوئی پنڈتوں کی سیوا کر کے اپنی مرادیں پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہائی یہ مسلمان کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہی وہ علم کی کتاب ہے جس نے دین و دنیا میں کامیابی اور خوشیوں کے دروازے کھولنے ہیں، مگر کوئی اسے کھول کر تو دیکھے۔ میں تو ٹہلی والی سرکار کو ایک ملنگ اور درویش سمجھتا تھا، ایک ایسا ملنگ جس کی زندگی قرآنی تعلیمات سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس کی اپنی دنیا، اپنا فلسفہ ہوتا ہے، اس کا علم رموز و کنایا میں پوشیدہ ہوتا ہے، مگر اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہماری جیتی جاگتی دنیا کا ہی فرد ہے۔ میں بڑا گنہگار ہوں میاں۔ وہ مجھے گمسم دیکھ کر بولے، میں واقعی تمہاری دنیا کا آدمی تھا، میں نے 4 MA کیے تھے، لیکن کیا ہے کہ جب میں نے اللہ کی کتاب سے لو لگائی تو میں دنیا کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے قرآن کو سمجھ کر حفظ کیا تھا، لیکن پھر بھی دنیا سے کنارہ کر گیا۔ یہ میرے والد صاحب کی محبت کا اثر تھا یا درویش ہستیوں کا قرب کہ اللہ کی راہ پر چلتے چلتے میں شہروں سے نکل کر ان قبرستانوں میں پہنچ گیا۔ مجھے ان منزلوں اور راستوں کی تلاش تھی جو جاگتی آنکھوں سے نظر نہیں آتے اور اندھیرے جن کی آنکھوں میں روشنیاں کر دیتے ہیں۔ بس میں ان راستوں پر چلتا رہا اور ان ہستیوں نے میرا سینہ قرب الہی کی مٹھاس سے بھر دیا جو اس شہر کی حفاظت میں مامور ہیں۔ میاں، تمہاری اس دنیا کے اوپر بھی ایک غلاف ہے، اور اس غلاف کے پیچھے اللہ کے محبوب ہستیاں پہرے دیتی ہیں، اچھائی کا پرچار کرتی ہیں۔ میں تو بہت معمولی انسان ہوں، ابھی تک قبرستانوں میں بھٹکتا رہتا ہوں۔ تمہارے جیسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہمارے جیسے مجذوب لوگ قبرستانوں میں ڈیرے کیوں لگاتے ہیں؟ تو سنو میاں، یہاں انہیں پہچان ملتی ہے۔ دنیا کی حیثیت، یہ جادہ حشمت اور دولت کی ہوس کا اندازہ انہیں یہاں آ کر ہوتا ہے۔ جب گوشت اور ہڈیاں مٹی میں خاک ہو جاتی ہیں تو تب احساس جاگتا ہے کہ ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کا انجام تو یہ مٹی کی ڈھیری ہے۔ بس یہ اللہ والے ان قبرستانوں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ باتیں کرتے ہوئے ٹالی والی سرکار کے چہرے پر عجیب طرح کا تناؤ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر یہ اللہ کے بندے ان قبرستانوں اور غلاف کی دنیا میں معمور نہ ہوں تو یہ شیطان ان بستیوں کو تراج کر دیں۔ تمہارے بابا جی جیسے جنات ان بدکاروں کا کام تمام کرتے رہتے ہیں، مگر جب کالی داس جیسے حرام خور حد سے بڑھتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بس آج اس کا یوم آخرت آ پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر ٹالی والی سرکار نے مرلی کے سر پر اپنی انگزشت شہادت رکھی تو اس کا بدن سرخ بیت کی طرح لرزنے لگا۔ اے کالی داس، میں تیرے داس کے ذریعے تجھ تک پہنچوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے غازی کی طرف دیکھا اور کہا، جاؤ اپنے بابا جی کو بلا کر لاؤ، اور ہاں اپنے شاہ صاحب کو بھی لیتے آؤ، اور نظر و نیاز کا سامان جلدی سے لے آؤ، ہمارے بہت سے مہمان آنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی غازی غائب ہو گیا۔ میرے احساسات پر ایک طرح سے نشہ سا طاری تھا۔ میں اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کو جو اسرار کے پردوں میں پوشیدہ ہے اسے بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس عطا پر مسرور تھا کہ دنیا میں میرے جیسے کتنے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہوں گے جن کے سامنے کائنات اپنے حجاب اٹھا لیتی ہے۔ ٹہلی والی سرکار نے مرلی کے سر پر ہنوز انگلی رکھی تھی اور وہ تڑپتا جا رہا تھا۔ وہ زیر لب بھی کچھ پڑھ رہے تھے۔ چند لمحے بعد انہوں نے کچھ پڑھا اور مرلی کے سر پر پھونک ماری تو اس کی اذیت ناک کراہ نکل گئی۔
टाली वाली सरकार की आंखों का रंग सुर्ख होता जा रहा था और पूरे बदन में अकड़ाव सा महसूस हो रहा था। वो तन कर बैठ गए थे। उन्होंने एक बार फिर मरली पर फूंक मारी तो इस बार उसकी कराह आखिरी साबित हुई। वो तड़पने लगा और फिर देखते ही देखते उसके वजूद से धुआं उठने लगा। मरली बुरी तरह तड़प रहा था। मैं खौफज़दा होकर पीछे हटने लगा तो टाली वाली सरकार ने गजबनाक नजरों से मेरी तरफ देखा और इसी जगह बैठने का इशारा किया। मेरी नजरें मरली पर जमी हुई थी, जिसकी शक्ल तेजी से बदल रही थी। इसका चेहरा अब कुत्ते जैसा हो गया था, मगर उसका बदन पिघल कर धुएं में तहलील हो रहा था। चंद लम्हों बाद ही जहां कुछ देर पहले मरली बैठा था, वहां धुएं का एक गुब्बार बैठा हुआ नजर आया और जब ये गुब्बार भी छट गया तो वहां थोड़ी सी राख नजर आई। टाली वाली सरकार ने ये राख अपनी हथेली पर रखी और फिर दरी के नीचे से एक पुराने कपड़े का टुकड़ा निकाला और राख उसमें बांधकर कपड़े को मिट्टी में दबाकर बोले, अब देखता हूँ कालिदास तू कहाँ तक भागेगा। इस दौरान गाजी शाह साहब और बाबा जी को भी अपने साथ ले आया। बाबा जी और शाह साहब टाली वाली सरकार के साथ एक मुख्तलिफ जुबान में बात करने लगे। मैं हैरान हो रहा था कि ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं। ना अरबी, ना फारसी, ना संस्कृत, ना उर्दू, न जाने कौन सी जुबान थी, मगर मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो जो भी जुबान बोल रहे थे इसमें अरबी फारसी जैसी नरमी और फसाहत और बलागत और किसी कबायली इलाके की जुबान जैसी करख्ती भी थी। गुफ्तगू के दौरान वो जुलेखा का नाम भी ले रहे थे। इनके चेहरों के तासुरात से लगता था कि वो किसी बात पर परेशान हैं और इनके अंदर तनाव पाया जाता है, मगर मैं नहीं समझ सका कि इन्हें ये तशवीश किस बात की हो सकती थी। खासी देर बाद वो मेरी मानो जुबान में बोलने लगे थे। शाह साहब ने नजराने की तमाम अशिया टाली वाली सरकार के सामने रखवा दी थी, जिन्हें देखकर वो बोले, हमारे मेहमान बहुत ज्यादा आने वाले हैं, इनसे क्या बनेगा। शाह साहब बोले, सरकार फिलहाल तो इतना ही बंदोबस्त हो सका है, खैर आइंदा ख्याल रखा करो, हमारे मेहमानों के लिए तुम्हारा हाथ तंग नहीं होना चाहिए। टाली वाली सरकार के चेहरे पर कदर खुफकी नजर आ रही थी। मैंने मरली का मसान पकड़ लिया है और अब कालिदास को हाजिर करने लगा हूँ। तुम लोग अपने अपने हिसारों में चले जाओ, न जाने वो गैरत मरते मरते किसको मार डाले। शाह साहब इसको अपने साथ ही बिठा लें। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया तो शाह साहब ने कुछ पढ़कर मेरे और अपने गिर्द एक दायरा खींच दिया और हम हिसार में बैठकर टाली वाली सरकार की तरफ देखने लगे। उन्होंने हथेली खोली और राख कपड़े से निकाल कर खाली आब खूरे में डाल दी और फिर जेरे लब एक गैर मानूसी जुबान में कुछ पढ़ने लगे। मान मुझे याद आया कि ये तो वही जुबान है जो शाह साहब कभी कभार बाबा जी सरकार की हाजिरी के लिए बोलते थे। टाली वाली सरकार भी इसी जुबान में बड़ी तेजी से मगर जलालत अमेज अंदाज में बुलंद आवाज में पढ़ने लगे और फिर कुछ देर बाद उन्होंने आप खुरे के ऊपर अपनी हथेली रखी और फिर दूसरा हाथ शाह साहब की तरफ बढ़ा दिया। शाह साहब ने अपनी जेब से एक छुरी निकालकर इन्हें पकड़ा दी। टाली वाली सरकार ने छुरी की नोक आप खुरे पर हथेली में चुभोई तो खून की चंद बूंदें टपक कर उसमें गिरने लगी और इसी लम्हे पूरे कब्रिस्तान में शदीद ज़लज़ले का एहसास पैदा हुआ। यूं लगता था जैसे कब्रों में दफन सारे मुर्दे जैसे एकदम कब्रें फाड़कर बाहर निकल पड़े हों। हर तरफ मकरूह, खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ कहके सुनाई देने लगे। खून की बूंदों से आप पूरे में नारंगी रंग का शोला सा बुलंद होने लगा था। इसी लम्हे मेरे कानों की लूहें झलसने लगी थी। मैंने अजीब नजरों से अपनी उस किलाई की तरफ देखा जिसको काट कर शाह साहब ने खून निकाला था और एक काला इलम पढ़कर जुलेखा को चुड़ैलों के हमले से बचाया था। मैंने शाह साहब की तरफ देखा तो मुझे उनका चेहरा धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा। इनके चेहरे पर मुझे किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इनका दर्द तो इंसान का था मगर चेहरा एक हिब्बतनाक दरिंदे का था। शाह साहब के चेहरे को देखकर मुझे टाली वाली सरकार की बातें याद आने लगी और मेरा ज़हन बड़े मलिक साहब की दूर अंदेशी को दाद देने लगा था, मगर ये समय दाद देने का नहीं था। मैं तो ऐसे लोगों में घिर चुका था जो अपनी ही दुनिया के बाशिंदे थे। मैं हैरान था कि टाली वाली सरकार के बकौल अगर इस दुनिया में इंसानों का कहतुल रजाल था तो वो अपने शाह साहब भी इनमें शामिल थे। और फिर ये टाली वाली सरकार जिन्हें मैं एक बहुत ही बुजुर्ग हस्ती समझने लगा था, वो खुद भी तो इसी सफ में खड़े नजर आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि किसी अल्लाह वाले को दुनियावी और सिफली अलूम की जरूरत नहीं होती, मगर ये टाली वाली सरकार भी तो मेरे नजदीक एक पारसा हस्ती थी, मगर वो भी सिफरी इल्म की ताकत से मरली की राह पर कोई अमल कर रहे थे। मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था और मेरा ईमान डगमगाने लगा था। दरअसल जब आप किसी मोतबर और पारसा हस्ती की बातों से घायल हो जाते हैं, लेकिन जब उसके कौलो फेल में तजाद पाते हैं तो आपके जहन में बारूद फटने लगता है, कल्बो नजर में कहराम मच जाता है और आप सोचने लग जाते हैं कि या इलाही ये कैसा इसरार है।
इन जैसे ये तेरे बंदे जो सबके सामने नेकियों पारसा और तेरी ताकतों की तबलीग करते हैं, मगर जब इनको अमली जिंदगी में देखते हैं तो इनका किरदार बहुत ही पस्त नजर आता है। एक बेअमल आलिम और मुबल्लिग यकीनन बहुत से लोगों के अकायद और ईमान को मुतासिर कर देता है। कोलो फिल का तजाद मेरे जैसे कच्चे ज़हनों को बेरहमी से कुचल देता है। मेरी कैफियत इन बहुत से नौजवानों से मुख्तलिफ नहीं थी जो सच्चाई की तलाश में निकलते हैं तो गुमराही के गढ़ों में गिरा दिए जाते हैं। वो नहीं जानते कि जिन्हें मोतबर समझकर इनकी तकलीद में लग जाते हैं वो किस कदर हकीर होते हैं। मैं अगर सहाफ़ी ना होता तो शायद मेरे ज़हन पर टारी वाली सरकार और शाह साहब के मुतल्लिक बदगुमानी और शकूक व शबात पैदा ना होते। मैं शाह साहब और टारी वाली सरकार की हकीकतों को पा चुका था, मगर फिर भी एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं मैं मुस्मरीज तो नहीं हो चुका। मैंने अपने बदन पर जोरदार चुटकियां काटकर अपने होश और हवास को चेक किया और एक बार फिर माहौल का अंदाजा करने लगा तो मेरा गुमान एक तल्ख हकीकत और पुख्ता यकीन की तरह सच साबित हुआ। शाह साहब का चेहरा किसी हिब्बतनाक और सफाक बिन मांस जैसा था। मैंने टाली वाली सरकार के चेहरे को देखने की कोशिश की तो इस लम्हे इनके गिर्द गहरे धुएं का गुबार सा पैदा हो चुका था और धुएं की गहरी चादर ने इनका चेहरा ढांप लिया था। खौफ से मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और कनपटियों पर सनसनी रेंगती महसूस हो रही थी। मैंने उस वक्त खुद को बहुत तन्हा महसूस किया और दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, ये तेरी दुनिया के कैसे इसरार हैं और ये कौन लोग हैं? या अल्लाह, मैं तुझसे रहनुमाई चाहता हूँ। अगर ये लोग वाकई मेरे यकीन के मुताबिक बुरे हैं तो मुझे इनसे तू ही बचा सकता है। मुझे इनके रहमो करम पर ना छोड़ देना। मैं जो आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था मेरे अंदर एक कुव्वत सी बेदार हो रही थी। रगो पे में जैसे इत्मीनान ऊद आया था और नजरों के सामने बेनिकाब होने वाले हिजाब और गहरे होते चले गए। अब मुझे टाली वाली सरकार का चेहरा भी दिखाई देने लगा था। इनके चेहरे पर अब ताजगी और नूरानियत नजर आने लगी थी। धुआं गायब हो चुका था। अब उनके सामने उस प्याले में नारंगी शोले बुलंद हो रहे थे। मैं कदरे हैरान हुआ कि टाली वाली सरकार का चेहरा एक मुतमईन बुजुर्ग का था, मगर जब रियाज शाह की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अभी तक बिन मांस का चेहरा दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में अब टाली वाली सरकार के बारे में पैदा होने वाले शकूक व शुबात खत्म होने लगे थे और मैं ये सोचने लगा था कि ना जाने इन्होंने किस जरूरत के तहत ये अमल किया था और इन्हें क्या मजबूरी थी। और फिर मेरे ज़हन में ये भी ख्याल आया कि मैं जिस अमल को एक काला इल्म समझ रहा था, न जाने वो अमल वाकई सिफर इल्म में से था या नहीं। इस तावील के बावजूद मेरे ज़हन में ये तकरार बार बार पैदा हो रही थी कि किसी अल्लाह वाले को, रूहानियत के माहिर को हरगिज़ काला इल्म नहीं करना चाहिए, ना ही इसका सहारा लेना चाहिए, ख्वाह इसे कैसी ही मजबूरी क्यों ना हो। मैं अपने अंदर उठने वाले हिजानो तज़ब्ज़ब में मुब्तला था कि टाली वाली सरकार के आब खुरे में पैदा होने वाली आग के शोले बुलंद होकर गहरे धुएं में तब्दील होने लगे और कब्रिस्तान में शदीद किस्म की आंधियां चलने लगी। मेरे बहुत ही करीब बहुत सी कब्रें एक धमाके से शक हो गईं और इनमें से गहरा धुआं निकलने लगा। मैं चारों तरफ देखने लगा। कब्रों से निकलने वाला धुआं बुलंद होता चला गया और फिर उसने हमारी तरफ रुख कर लिया। धुएं की शक्ल किसी बेढंगे और ढील ढोल वाले इंसान जैसी थी।